નાક, આંખ, કાન, ગળા અને પેટની, સ્કિનની, આખા શરીરમાં જાત જાતની એલર્જી થાય છે. એને માટે આજે ઉપચાર બતાવીશ. સૌથી પહેલા આ ભાઈને તમને શું હતું, किस चीज की एलर्जी थी? नाक हमेशा सीजन चेंज होता है तो नाक हमेशा ब्लॉक रहता है, एक कभी दूसरा, और एक चेस्ट में एलर्जी रहती है, हमेशा खांसी जैसी बनी रहती है और जकड़न सा फील होता रहता है इसमें. તો આજે એના માટે શું કરવાનું, પહેલા તલના તેલથી, બાદામ રોગનથી, ગાયના ઘીથી મસાજ કરવાનું. પછી નાકમાં એ ટીપા નાખી દેવાના, 10-10 ટીપા આ અણુ તેલના. કોઈ પણ જાતના બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફંગસ હોય એ અંદર સુધી 10-10 બૂંદ એક નાકમાં આવી રીતે નાખી દેવાનું. અંદર સુધી જશે અને બહુ તેજ નહીં લાગે. એના એવું પ્રભાવ છે એનો, અને અમે સાયન્ટિફિક રિસર્ચ કર્યું છે. 24 કલાકમાં જે એક બાર જે નશે કરી લે તો એના પર કોઈ બેક્ટેરિયા, કોઈ વાયરસ, કોઈ ફંગસનો ઇફેક્ટ નહીં થાય. મસાજ કરીને આવી રીતે આમ કરો ને, એના સ્ટીમ પણ સાથે લઈ લો તો વધારે લાભ થાય. આ તો નસ્ય થયું. પછી આમાં અહીંયા છે, કોઈ આમાં તમાકુ નહીં, કોઈ બીજી વસ્તુ નહીં. આમાં મુલેઠી છે અને ગાયનું ઘી છે. મુલેઠી અને ગાયનું ઘી એ મેળવીને આમાં મૂકી દીધું. એક નાકથી આમ લેવાનું ધીમે ધીમે, બીજા નાકને બંધ કરીને આંખા ભરી લીધું આમ, અને બીજા નાકથી કાઢી દેવાનું. એના આમ બીજા નાકથી આમ નીકળે. તો આ છે ધૂમ ચિકિત્સા. અને પછી યજ્ઞ ચિકિત્સા. આ યજ્ઞથી પણ જાત જાતની એલર્જી દૂર થાય. અને અમે ધૂમ્ર પણ આપીએ છીએ, ગુગળનો, લોબાનનો, બીજી ઔષધિઓનો. એ ધૂમ ચિકિત્સા પણ થાય છે. આવી રીતે આ તો નાનકડા ઉપાયો બતાવ્યા. એલોવેરા અને ગળો, એનો રસ પીઓ, એલોવેરા જેલ લગાવો. પછી એલોવેરા, લીમ, હળદર, માટી, એને લેપ કરવાથી, જેને સ્કિનની બહુ પ્રોબ્લેમ હોય તો ગોધન અર્ક નાખી દેવાનું. એનાથી સ્કિન સારી થઈ જાય. સ્કિનની એલર્જી, જાત જાતની પ્રોબ્લેમ હોય એના માટે જાત જાતની ઔષધિઓ અમે બતાવીએ છીએ. સૌથી પહેલી વાત, પેટની એલર્જી, એનો તો સર્વકલ્પ અને કાયાકલ્પ, એનો ઉકાળો પીઓ તો ખાવાની પીવાની કોઈ પણ જાતની એલર્જી હોય. અને કપાલભાતી બધા કરો. કપાલભાતી અને અનુલોમ વિલોમ, આ તો 2 થી બધી જ જાતની એલર્જી दूर થાય છે. और ऐसी ही अलग अलग एलर्जियों से, आपको किस चीज की एलर्जी थी बेटा? मुझे पैरों में खुजली होती थी पूरे कपड़े पहनने से. अच्छा. और पूरा लाल हो जाता था पैर. अब ठीक है, अब नहीं होता. क्या किया? मेरे नाना नानी ने मेरे को काढ़े पिलाए थे, मुझे नहीं पता कौन से. ये सर्वकल्प, कायाकल्प, ये जो काढ़ा पीवे, इन्हें काढ़ा पिया और इसकी एलर्जी दूर हो गई. ये लाल हो जाना, चकत्ते हो जाना, खुजली हो जाना. કાયાકલ્પ વટી આમ 2 ટીકડી સવારે સાંજે, અને નીમ અને ગળો એ જમ્યા પછી, નહીં તો આરોગ્ય વટી લે. કોઈ પણ જાતની એલર્જી હોય સ્કિનની તો તરત મીટી જાય. 100 ગ્રામ બાદામ, 20 ગ્રામ કાળી મિર્ચ, 50 ગ્રામ ખાંડ પાવડર કરીને 1 ચમચી લઈને, અને આંખ, નાક, ગળા અને ફેફસાની એલર્જી એ મટી જાય. નાનકડી વસ્તુઓનો પ્રયોગ કરીને જાત જાતની એલર્જી હોય છે. આંખની એલર્જી હોય તો એના માટે તો ત્રિફલાથી આયવાસ, સવારે જે લાર હોય, સલાઈવા હોય, એના આંખમાં એનાથી અંજન કરી લેવાનું. એનાથી આંખની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય. નહીં તો મધ નાખવાથી, હનીથી, ઘણી બધી આવી ઔષધિઓ છે. આમ તો દૃષ્ટિ, સૌમ્ય અને બાદામ નો ઓઇલ, ગાયનો ઘી કે મહાત્રિફલાઘૃત, એ પણ આંખમાં નાખીએ છીએ અમે. અને એ બાદામ રોગન તો આંખમાં, કાનમાં, નાકમાં, 3 જગ્યાએ નાખી શકાય. એનાથી પણ એલર્જી દૂર થાય. જાત જાતની એલર્જી હોય અને એના માટે જલનેતી, સૂત્રનેતી, નસ્યથી માંડીને શંખ પ્રક્ષાલન અને બસ્સી, એનાથી પણ ઘણી બધી એલર્જી મટે. तेरी क्या हाल है? तेरे तो पैरों में एलर्जी दिख रही है. जी स्वामी जी. हाँ. यही एलर्जी, अभी कितना फायदा हुआ चमड़ी इसका? जा रही, लाल पड़, अभी बहुत फायदा हो गया.
पहले से बहुत कम, नहीं तो लाल पड़ जाता था पूरा। अब तो काफी जी नॉर्मल कलर आ रहा जी, है। एक दो और दिन वजन कितना कम कर दिया? वजन 8 किलो कम हो गया है। और शुगर? शुगर नॉर्मल है स्वामी। और बीपी? बीपी था ही नहीं। शुगर नॉर्मल आ गई, वो भी ठीक है। फैटी लिवर बहुत बुरा हाल। लंग्स में भी प्रॉब्लम थी, सांस हाँ, चला नहीं जाता। चलने में हाँफ जाता था थोड़ा भी, अब तो पूरे घूम लेता हूँ। काफी दिनों से डटा हुआ है तो जी स्वामी जी, कितने हो गए? अभी 25 दिन हो गए स्वामी। मैं देख रहा है तो रोज दिखाई देता है मेरे को। तेरे को ये क्या हुआ है? मेरे को सीओपीडी का पेशेंट हूँ, पर 12-13 साल से प्राणायाम तो करता हूँ, पर अभी प्राणायाम के साथ साथ इसमें यज्ञ थेरापी, थोड़ा इसमें नेचुरोपैथी, कुछ लेप, सारी चीजें करवाई। कल आया, मैं कल नेचुरल पंचकर्म किया, अभी करवाएंगे पूरा, मिलेंगे और आपसे ठीक हो जाएगा। कितने साल से चल रहा है? 12 साल हो गए। 12 साल से मिट जाएगा। स्वामी जी मिलने का टाइम मिल बने। लेगा। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, हाँ, अनुलोम विलोम भी करो। कुछ तो कपालभाति करके रुक गए। तू तो स्वस्थ बालक है, तेरे को क्या एलर्जी थी? हाँ, इसको तो सफेद दाग हो गया भाई पूरा ही। और एलर्जी है पूरे। क्या नाम है? रजनीश राज, नवादा बिहार से मैं हूँ। ये तेरे को शुरुआत कैसे हुई? मालूम नहीं बाबा जी, बचपन से ही है, 14-15 साल से ही है। अब बचपन से ही है। मछली और दूध भी खाने से एलर्जी होती है। खाया तो नहीं था बचपन में? याद नहीं है, मतलब 3-4 साल के था तभी से ये हो रहा है। मछली और दूध भी साथ में लेने से सफेद दाग होता है, और मछली दूध और नमक साथ में लेने से। अब ये सबको रिएक्ट नहीं होता, लेकिन इसका एक कारण वह भी है। खैर, अब दूध और नमक कभी साथ में नहीं लेना, और मछली तो ना खाओ तो अच्छा है। अब क्या है बिहार और बंगाल में, उड़ीसा में तो मछली के बिना चलता है। उसको तो जल तोरई बोलते हैं, जल तोरई। तो अब तेरा ठीक हो जाएगा। इसमें मिलिनोग्रिट, मिली है। मिलिनोग्रिट लेनी है, डर्माग्रिट लेनी है, और गोधन अर्क और नीम की गोली खाली पेट। 4 ढक्कन छोटे छोटे ना उसके गोधन अर्क की, 2 से 4 ढक्कन गोधन अर्क, ज़्यादा नहीं ले, और नीम की गोली खाना, तेरा पूरा ठीक। अब बताओ, अब नानी उम्र से आ छोकरा ने सफेद दाग थे गया, मटी जैसे कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना, तेरा पूरा सफेद दाग ठीक हो जाएगा। स्किन की एलर्जी क्या है? ये तो पूरा लिकोडर्मा ही हो गया। स्किन ने एलर्जी, अलिमड़ाना पान। अच्छा, ये नीम के पत्ते ऐसे ही नहीं है। पहले तो ये नीम को लोग ऐसे समझते थे कि इसकी छाया तो इसकी ठंडी होती है, दांतुन भी इसकी बहुत अच्छी होती है। अभी तो अमेरिका में नीम और बबूल की दातुन अमेजोन के ऊपर 5-5 हजार रुपए में मिलती है। नीम और बबूल की दातुन, हाँ। अब वो लोग टूथपेस्ट से हट रहे हैं, और हम लोग जो है जब तक झाग मुंह में ना भर लें तब तक हमको तसल्ली नहीं होती। तेरे तो ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही बेटा। सफेद दाग में तो चित्रघन लेप लगाया होगा ना, फफोला हो जाता है इसमें। हाँ, एलोवेरा जेल लगा लेना। दोनों हाथों में लगाए ना तो नॉर्मल कलर आ रहा है अब नीचे से। जब ये फूट जाएगा तो ऐसे नॉर्मल कलर आ जाएगा। और डर्माग्रिट खाने पे, वेलिनोग्रिट खाने के बाद अच्छा, कायाकल्प और सरोकल्प, हाँ। ये काढ़ा पी। अच्छा, ठीक हो जाएगा बाबा जी। और कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कर। हाँ, वो करती है। स्किन भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, और दांत भी तुम्हारे पीले कैसे है? वो तो हमारे Heredity से। हाँ, पानी का असर होता है छोटी छोटी चीजों में। पानी के असर से ही दांत पर असर आता है, पानी से स्किन पर। तुमको स्किन का प्रॉब्लम कब हुआ? 8-9 साल हो गए। मेरी मम्मी को भी था। जेनेटिकली आ गया, जेनेटिकली आ जाते हैं, लेकिन इसको चैन को तोड़ सकते हैं। ये जैसे सफेद दाग है तो कोई भी दूध के साथ नमक वाली प्रयोग नहीं करना वस्तु। रात को दही छाछ नहीं लेना। हाँ, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं लगाना, 3 दिन में 1 बार लगाना। फिर कायाकल्प लेप लगाना। श्वेतघन लेप तो 3 दिन में 1 बार ही बहुत। हाँ, तेरे को क्या है?
में जाते हैं तो चेहरा एकदम रेड पड़ जाता है, स्किन में रेड रेड से बन जाते हैं। कहेंगे कि शायद ये कोई कॉस्मेटिक लगा के बैठी है। नहीं, झगड़ती हैं, लड़ती हैं, तो चिल्लाती एकदम हैं तो चेहरा लाल हो जाता है, हंसती हैं बोलती हैं तो चेहरा लाल हो जाता है। मेरी वाइफ है। तेरे से झगड़ा करती हैं तो भी लाल हो जाती है, और प्यार करती हैं तो भी लाल हो जाती है। हंसने में भी लाल, और रोने में भी लाल, और गुस्से में भी चेहरा लाल, एकदम गरम गरम भी हो जाता है। तो एलोवेरा जूस पीना बेटा 3 बार, जी। सुबह दोपहर शाम 2-2 ढक्कन। एलोवेरा और गिलोय दोनों पे, और एलोवेरा गिलोय फ्रेश लेना, उबाल के नहीं पीना गिलोय को, उसको क्रश करके और एलोवेरा जूस फ्रेश ले करके, और उसी को ही मिट्टी का मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, नीम के पत्ते और थोड़ी सी कच्ची हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं लेना, ज़्यादा हल्दी गर्म करेगी। मिट्टी में मुल्तानी मिट्टी को रात को भिगो देना। रात को भिगोने से उसका नेचर बहुत चेंज हो जाता है, और फिर उसको लगाना सुबह और शाम, और दिन भर एलोवेरा जेल लगा के रख। 1 महीने में ही तेरी ना हंसी से, ना रोने से, और ना गुस्सा करने से, गुस्सा तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आर्थराइटिस भी है। ये पैर में हाँ, ये तो सूजन आ रखी है। कपालभाति अनुलोम में 1 घंटा करते हैं। करे हैं, लेकिन अब जिस दिन से कर रहे हैं तो यहाँ इतना दर्द हो रहा है कि हम ऐसे झुक नहीं पा रहे हैं योगा कर। नहीं, छुई मुई क्या हो गई। देखो, शुरू में जब कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं तो दुखता है, कपालभाति में थोड़ा सा ही दुखता है, तो धीरे धीरे करने से। ये स्टेरॉइड तो लेना ही नहीं। HCQS 200 mg जो टैबलेट है वो दी गई थी, प्रेगनेंसी के दौरान दे दी थी डॉक्टर साहब ने जी। मैं फतेहपुर यूपी से हूँ, सुधीर कुमार मेरा नाम है जी। अब तुम योग करना बेटा, पहले कपालभाति अनुलोम विलोम और अर्थराइटिस की थोड़ी दवाई जो पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, स्पिरुलिना सब लेंगे ना, और बाद में एलोवेरा और गिलोय ले लेना। ये लेने के बाद जब अर्थराइटिस अच्छा हो जाएगा तो थोड़े दिन संतति सुधा और नारी सुधा लेना, फिर बच्चे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 जितने पैदा करने हो कर लेना, और 1 मुझे भी दे देना। तो ये छोटी छोटी बातों से परेशान रहते हैं लोग। हाँ हाँ जी। मेरे भी कान में ना बिल्कुल स्किन वाइट वाइट से निकलने लग जाती थी सुबह, तो मैंने फिर काफ़ी नारियल तेल लगाया, सब कुछ किया। रोज़ सुबह से वाइट 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 सा निकल जाता था, और पपड़ी से जम जाती थी। तो मैंने कायाकल्प तेल लगाया, उससे मेरे को अब बिल्कुल ठीक है। बस हमें कायाकल्प तेल, जिनको भी कान में खुजली होती है, पपड़ी सी उतरती है, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं, वो कायाकल्प तेल तो इसके लिए रामबाण है। और अभी तो उससे मेरे दोनों कान ठीक हो गए। बस मुझे अब ये है कि इसके ऊपर भी ब्लैक, हाँ, वो स्टीरॉइड वाला खा के उससे हो गया, तो मुझे उसको ठीक है। मेरे को अर्थराइटिस भी है ना, तो अब मेडिसिन मैंने छोड़ दी है, बस यहाँ ही कर रही हूँ इलाज। अब मेरी यहाँ सोजिश थी वो भी कम हो गई है, और मेरी यहाँ पर भी जो पेन हो रही थी वो भी कम हो गई है पहले से, ठीक हो जाएगी। बस कृपा बाबा जी आपकी। मेरे को क्या है, कभी मच्छर काटता है तो मैं ऐसे जरा से भी हाथ लगाती हूँ ना, हाँ, किसी को मच्छर काटते ही वो बड़ा सा लाल लाल और फोड़ा सा हो जाता है, तो आप मच्छर को काट लिया करो। ये किसी को मच्छर काटते ही ना बहुत बड़ा चकत्ता सा हो जाता है। वो है, फिर नहीं स्किन भी खराब हो जाती है। देखिए ऐसे ना, ये बहुत अभी तो ठीक है, जैसे लाल लाल हो जाता है पूरा, और ऐसे रैशेस या खरोंचे जैसी आ जाती हैं ये। गिलोय और नीम की गोली खाना जी। तो मच्छर काटेगा तो मच्छर मर जाएगा। ओके। और नमक कम खाना, नमक और मीठा। मेरे को भी तो मच्छर काटे होंगे, पूरी दुनिया में घूमता हूँ और नंगा बैठता हूँ, तुम तो फिर भी कपड़े पहन लेते हो। मेरे को तो पता ही नहीं लगता मच्छर कब काटा और बेचारा कब मोक्ष हो गया। मच्छर ना भी काटे ना, तो जैसे कभी पसीने से भी खुजली होती है तो मेरी स्किन में पूरे खरोंचे पड़ जाती हैं। तो बस ये एलोवेरा और गिलोय जी। एलोवेरा गिलोय सुबह 2 ढक्कन एलोवेरा का जूस आता है ना जी, 2 ढक्कन गिलोय का जी, वो दोनों पीते रहना जी। और दर्द और स्किन सब ठीक जी। और क्यों नहीं ले सकते? मैंने सोराइसिस अपना ठीक किया 1.5 साल पहले। मुझे तेरे को सोराइसिस हुआ था? हाँ। तो मेडिकल भाषा में लाइकन प्लेनस पिगमेंटेशन बोलते हैं। वो मैंने सिर्फ योग किया, शुरुआत में कायाकल्प लगाया था बस, और सिर्फ 1.5 साल से मैं योग कर रहा हूँ। ये बायोप्सी हुआ था, स्किन का ये निशान है, इसमें पॉजिटिव आया है। उसके बाद ये धीरे धीरे मैंने योग किया, अब बहुत कम रह गया, लगभग 80% ठीक हो गया।
कायाकल्प शुरुआत में लगाया था वो, अब तो मैं 1.5 घंटे योग करता हूँ सुबह बस महाराज जी। कायाकल्प गिलोय नीम गोली भी खा लो तो पूरा निकल जाएगा। और मिट्टी लेप लगा लेना। अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज आए उसको बढ़ने मत दो, उसको वहीं खत्म कर दो। उपाय यही तो बता रहा हूँ, सुन तो ले। कोई भी नेगेटिव चीज आती है उसको वहीं ब्रेक कर दो। अब कहेंगे जी क्या करें, वो तो आती चलती रहती है, घर के बारे में, परिवार के बारे में, संसार के बारे में, और कुछ नहीं तो ऐसे ही कि जो है अब बताओ इतनी धूप क्यों हो रही है, अब ये बादल क्यों हो गया अचानक। अभी जो है वासना को उपासना से जीता जाएगा ना। उसके अपोजिट चीज जो है उसके अपोजिट चीज ले आओ, अच्छी चीज ले आओ तो अपने आप हट जाएगा। और नहीं तो एक के बाद दूसरा विचारों की श्रृंखला होती है। जैसे ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एक के बाद दूसरी बढ़ती है ना, तो विचार की भी संतति होती है। विचार की भी क्या होती है? संतति होती है विचार की भी, उससे भी बचना है। ये वेरिकोज वेन्स है। अब इसमें मिट्टी लेप लगाना। बहुत साल से पाँव दर्द हो रहा है, दर्द के मारे बहुत परेशानी होती है घर में। जैसे सुबह मेरे बेटे को डायबिटीज 1 हो गया है इंग्लिश दवाई के कारण से। अभी यहाँ 3 दिन हुआ है, आते ही इंसुलिन छूट गया। इंसुलिन इधर अभी आधा हो गया, बस 2 यूनिट सुबह शाम बचा है। छूट जाएगा। और तेरे को क्या फायदा? मेरे को पाँव में सूजन था 11 साल से, बेटा हुआ था उस टाइम ही ये हुआ था प्रेगनेंसी। सूजन उतर गया। अब ये नस से बस 3 दिन 3 दिन मिट्टी का लेप लगाया। सुन ले, तो एक ही बार लगा, 2 बार लगाया, पूरा लगाओ, 3 बार लगाया, पूरा 3 बार लगाया। थेरेपी लिया? नहीं, अभी आज लूंगी। प्लीज थेरेपी ले लो। और ये खाली कायाकल्पवटी, कायाकल्पवटी, नीम, गिलोय, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि मंडूर दे देते हैं, पूरा निकल जाता है। अब इसका वेरिकोज वेन्स का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, निकल जाता है। तुम तो एकदम ठीक बैठी हो। मेरे को जुकाम हमेशा रहती है और छींक आती है, तो मेरी आंखों के नीचे ये काले घेरे सब पड़ गए हैं। काला है ही नहीं। त्रिफला का पानी से कर रहे हैं ना, आंखों में बहुत अच्छा लग रहा, नहीं पानी बहुत गिर रहा था इसमें से। काली माई नहीं है यहाँ मेरे कान नहीं, आंख के नीचे मतलब ब्लैक हो गया था, और सूर्य की रोशनी से बहुत बाहर जाते थे, बहुत जलन होती थी यहाँ। हाँ, यहाँ त्रिफला से आईवास घर पे भी कर लेना। ओ આવીરીત્યા ભસ્ત્રિકા કપાલભાત અનુલોમ વિલોમ ભ્રામરી ઉદ્ગીત પ્રણવ ઓંકારનો ધ્યાન કરીને તમે સાત્વિક ઉર્જા પેદા કરો છો, ડિવાઇન એનર્જી અંદરથી યોગિક એનર્જી પેદા થાય તો બધી એલર્જીઓ ઓટોમેટિકલી મટી જાય છે. એટલે યોગ કરજો અને એલર્જીથી માંડીને બધા રોગોને મટાડજો.